Dear students, today we are going to discuss about bioreactors. Up till now, we have discussed in industrial biotechnology about the division itself and how the different procedures they are carried out and what are the basic principle which is being followed in industrial biotechnology. And in the last lecture, we have discussed about different cultivation methods used in industrial scale, and in those we discussed about fermentation bioprocessing biotechnology, which is fermentation biotechnology, and its different modes. And now today we are going to discuss about that fermentation which is being taking place at industrial level. That fermentation is taking place inside some kind of operators, and you can say vessel. So we called those vessels as bioreactors. In today's lecture we are going to discuss what are the components of bioreactors, what are the various features associated with it. So let's discuss bioreactors. Here's the reference from where this lecture is being prepared, so you can consult this topic. Now, what is bioreactor? As I already told you, it's just something an apparatus, or it's, you can say, vessel which have controlled conditions for the growth of different organisms, whether bacteria, yeast, or animal cells. So it's used in the industrial processes to produce pharmaceuticals, vaccines, and antibodies, and it converts raw material into useful bioproducts such as methanol, ethanol, and the bioreactors supply a homogeneous environment by constantly stirring the contents. बेसिकली बायोरिएक्टर के अंदर जो है एक environment create होना है, उस environment ने ultimate product बनानी है, और वो environment जो है वो homogeneous होना चाहिए, वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, उसको थ्रू आउट सेम रहना चाहिए और इसके अंदर कांस्टेंट स्टिरिंग बहुत ज़रूरी है. तो बायोरिएक्टर्स जो हैं, इट गिव्स द सेल्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बाय इंश्योरिंग द सेम टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन लेवल. ये मस्ट चीज़ें हैं. स्टिरिंग जिसकी वजह से एयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, टेम्परेचर जिसकी वजह से माइक्रोब ग्रो करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच और ऑक्सीजन लेवल. एयर स्टिरिंग का मतलब ये है कि जब वो कंटेंट जो है बायोरिएक्टर के अंदर मूव करे तो एयर जो है प्रॉपर्ली सप्लाई हो. ऑब्वियसली माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए, माइक्रोब्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए. तो ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो उस वक्त सही मेंटेन रहेंगे जब आपका कंटेंट जो है मुस्तकिल स्टिर कर रहा होगा, उसमें मुसलसल वो शेक हो रहा होगा. तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो रिलाई करते हैं. अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर. जिस तरह हमने कल्टीवेशन मोड्स डिफरेंट पढ़े हैं फर्मेंटेशन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पर भी बायोरिएक्टर्स भी इस बेसिस पे उन्हीं तीन जो मोड्स थे उन्हीं के ऊपर उन्हीं की, मतलब आप ये कह रहे हैं बेसिस के ऊपर बायोरिएक्टर्स डिजाइन होते हैं. बैच कल्चर के लिए बायोरिएक्टर अलग होता है, फेड बैच के लिए अलग होता है, कॉन्टिन्यूस कल्चर के लिए डिफरेंट बायोरिएक्टर्स हैं. अगेन ये सब ये आपको पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, बैच कल्चर क्या होता है, फेड बैच कल्चर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कल्चर क्या. तो जल्दी से इसको ओवरव्यू दे लेते हैं ताकि आपको एक मजीद इसमें क्लियरेंस हो जाए कि बैच कल्चर के अंदर यू आर गोइंग टू ऐड अप ऑल योर मीडिया एट वंस, एंड देन यू ऐड योर इनोकुलम, योर स्टार्टर कल्चर, एंड देन the reaction is started, and ultimately it will be going to end after a certain time, or when you can say the concentration of the media got changed, or when if you have set time for the reaction, if the time is meet up, then the reaction is ultimately going to end, and you will be having your product by emptying the content of the bioreactor. So it has a constant volume, whatever the initial volume, the end volume remains the same. In fed batch culture, it is started as a batch culture. In the beginning it is a batch process, but after a certain time a new fresh media is introduced into the vessel, and the volume of the vessel increases. So the volume at the start of the culture is different, and the volume of the vessel or volume of the total content is different
at the end of the reaction, obviously it is increased because you are add up you are adding your you can say you are adding your content, fresh media in it, and in the continuous culture, the bioreactor starts with initial volume, and the after certain time you are going to again add the fresh media into it, and you are taking the product out of it. So it means you are trying to maintain the volume at nearly constant, not constant but nearly constant, as you are taking out of the content from it. It is very clear from the pictures that there is an input and then output. You are going to add up your media, and then you are going to taking back the used, or you can say spent media from the vessel. So here are different types of bioreactors. They come in different size. They come in different sizes and in different configurations. Here you can see it's animated picture of the bioreactor. ये भी एक bioreactor है, single vessel है, और आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द काफी ट्यूबिंग्स हैं, काफी ट्यूब्स हैं, काफी कनेक्शंस हैं, और ये देखिए मुसलसल इसके अंदर शेकिंग हो रही है, और ये तो ऊपर जो बबलिंग बन रही है इसको फॉर्मिंग कहते हैं हम। ये बेसिकली एक यीस्ट कल्चर लगा हुआ है, इसके अंदर यीस्ट प्रिपेयर हो रही है। देखिए कॉन्स्टेंटली स्टिर कर रहा है ये, और इसके अंदर बाकी जितने भी आउटलेट्स हैं, इनलेट्स हैं, उनसे डिफरेंट चीजें मॉनिटर हो रही हैं और मेंटेन हो रही हैं। हम सारी पढ़ेंगे ऐसा ऐसा। ये देखें, ये दूसरा, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल का बड़ा रिएक्टर है। यहाँ पर एक साथ ये एक बहुत बड़ा रिएक्टर है, इसके अंदर कितने कितने गैलन्स जो है वो आपका सपोर्ट करेगा मीडिया, बहुत बड़ा है। ये भी एक टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स हैं। ये एक स्टेनलेस स्टील का बायोरिएक्टर है, सिंगल वेसल है। ये अप टू सर्टेन लीटर्स जो है ये मेंटेन करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास एक और बायोरिएक्टर है बायोस्टैट वालों का, जिसके अंदर आप देखें कि एक बड़ा वेसल है, ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट आउटलेट्स लगी हुई हैं जिनका बॉटल्स अटैच हैं। किसी के अंदर कोई बफर होगा, किसी के अंदर कोई डिस्टिल्ड वाटर होगा, ठीक है। ये बाकी सारी की सारी इनलेट्स और जो हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, पीएच मेंटेनेंस के लिए होगा, और कल्चर की एंट्री और एंट्री के लिए होगा, और आपने अगर इसमें से सैंपल ड्रॉ करना है उसके लिए भी पोर्ट होगी, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं साथ में ये एक आप थर्मोस्टेट टाइप चीज है, जो इसमें आप डिफरेंट चीजें सेट करेंगे तो इसके अंदर चीजें मेंटेन होगी, ठीक है। मतलब आप टेम्परेचर, प्रेशर, और आप इसके अंदर क्या कहते हैं पीएच, ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं इनके थ्रू। इसके अंदर भी आपको ये ऐसा ऑटोमेटेड साथ में एक लगा हुआ है, इसके अंदर भी है मौजूद, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं बायोरिएक्टर्स की। हम इनकी मजीद टाइप्स जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं बायोरिएक्टर के कंपोनेंट्स की। बायोरिएक्टर के कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले तो वो वेसल है, वो ग्लास की भी हो सकती है, वो स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है, या वो किसी और सिंथेटिक मटेरियल की भी हो सकती है। इवन के जो बैग्स होते हैं, लाइक बैग्स हम समझते हैं मतलब ऐसा फीचर जो कि फ्लेक्सिबल है, बैग के अंदर भी को भी एज अ बायोरिएक्टर यूज किया जा सकता है, ठीक है। नो डाउट वो शॉपिंग बैग टाइप नहीं होगा, वो प्लास्टिक पॉलिथीन बैग तो नहीं होगा, लेकिन ये कि वो थोड़ी बेहतर जो है ना पॉलिथीन हो सकती है, या कोई सिंथेटिक मटेरियल हो सकता है जिसके जरिए जिसमें वेसल बन सकती है। तो वेसल का मतलब ये है कि आपका ग्लास, स्टेनलेस स्टील या कोई इस तरह का कोई कंपोनेंट, कोई आपका बड़ा सारा पॉट है जिसके अंदर आपने रिएक्शन लगवाना है। उसके अलावा यहाँ पर जरूरत है एजिटेटर्स की। एजिटेटर्स होते हैं, एजिटेटर्स हमने पहले ही बता दिया कि जी आपने जो बायो फर्मेंटेशन होनी है उसके अंदर एजिटेशन बहुत जरूरी है। एजिटेशन होगी तो जो है कंटेंट मिक्सिंग भी होगी कंटेंट की, और जो आपका पीएच, टेम्परेचर और ऑक्सीजन मेंटेन होनी है वो भी इसके थ्रू होगी। स्पार्जर होता है, ये क्या होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें पढ़ेंगे। बेफल्स होते हैं, प्रोब्स होते हैं, टेम्परेचर प्रोब है, ऑक्सीजन प्रोब है, पीएच प्रोब है, प्रेशर प्रोब है। उसके अलावा कूलिंग जैकेट, जब इतना कुछ शेकिंग हो रहा है एक वेसल के अंदर तो ऑब्वियसली हीटिंग उसमें
में जनरेट होगी, तो उस हीटिंग को सबसाइड करने के लिए वहाँ पर एक कूलिंग जैकेट होनी लाजमी है बायोरिएक्टर के साथ। उसके अलावा पोर्ट्स होनी चाहिए इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ मटेरियल की। आपने अगर कोई इनपुट देना है चीज़ों का तो वो उसके लिए भी वहाँ पर पॉइंट्स होंगे, और अगर आपने सैंपल निकालना है चेक करने के लिए कि इस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम में कंपोनेंट क्या है या कंपोजिशन क्या है आपके मीडिया की, उसमें कितनी से प्रोडक्ट बन चुकी है या वो अभी रहती है, वो आप उसके लिए आपको आउटपुट पोर्ट चाहिए। उसके अलावा कंडेंसर है वहाँ पर। कंडेंसर का भी वही काम है कि इसने पानी को पानी जो है वो इसने मजीद प्योरीफाई करके भेजना। और देखो था ना डिस्टिल्ड वाटर, कंडेंसर का काम ये होता है कि उसने क्या करना है, पानी को मजीद कूल मतलब वेपरेट करा के फिर उसने उसको दोबारा जो है ना प्योरीफाई करके भेजना है आपके वेसल के अंदर। बैक प्रेशर वेल्व होता है कि कंटेंट एकदम से, जैसे भी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि वो यीस्ट मेकिंग के अंदर वो कंटेंट मिक्स हो रहा था तो फॉर्मिंग भी डेवलप हो रही थी, तो वहां पर प्रेशर भी बनता है। ठीक है, जो कंपोनेंट की मिक्सिंग से एक इंटरनल प्रेशर बनता है उसको भी मेंटेन करने के लिए बैक प्रेशर वेल्व है। उसके अलावा इनलेट फिल्टर्स एंड एग्जॉस्ट फिल्टर हैं। जो कुछ भी वेसल के अंदर आ रहा है वो सब कुछ फिल्टर होकर आ रहा है, और जो कुछ भी उससे बाहर निकल रहा है वो फिल्टर होकर निकल रहा है, तो उसके लिए फिल्टर्स चाहिए। वेल्व्स हैं, वेल्व्स जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके क्लोज्ड पॉइंट है जिनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, जो टाइमली ओपन हो सकते हैं। और लोड सेल है, ये सब चीजें क्या हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे अभी। सबसे पहली बात है बायोरिएक्टर वेसल। वेसल जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर मीडिया और जो आपका और लिविंग कंटेंट है, वो लिविंग सेल्स हैं, वो इसके अंदर मौजूद होंगे। ये ग्लास का भी हो सकता है, ये स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, ये किसी ड्यूरेबल प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेबल प्लास्टिक के जो वेसल्स होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, दे आर सिंगल यूज। जैसे मैंने कहा ना कि जो ग्लास और स्टेनलेस स्टील है वो तो रिजिड मटेरियल है ना, और लेकिन इसके अलावा फ्लेक्सिबल मटेरियल भी एज अ वेसल यूज होते हैं और वो डिस्पोजेबल होते हैं। जितने भी एडिशनल पार्ट्स हैं बायोरिएक्टर्स के वो वेसल से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब वेसल इस तरह का होना चाहिए, वो चाहे ग्लास का हो, चाहे स्टेनलेस स्टील का हो, चाहे वो डिस्पोजेबल है, कि उसके अंदर एडिशनल पार्ट्स जरूर होने चाहिए जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें चीजों को। तो वेसल के ऊपर एक सबसे पहले हेड प्लेट होती है। ठीक है, हेड प्लेट होती है इस ऑन ग्लास रिएक्टर्स मोस्ट एडिशनल पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द हेड प्लेट। जो आपकी जैसे अभी वो अगेन मैं रेफर करूंगी पिछली वेब स्लाइड के ऊपर जहां पर यीस्ट की आपने देखा था, वहां पर क्या कहते हैं, ये अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेंगे हम। ये देखें जी, ये है वही जो पीछे आपने पिक्चर में देखा था ग्लास वेसल। ये ग्लास का एक वेसल बना हुआ है। ठीक है, एक टफ ग्लास है, उसके बाहर देखें स्टील के फ्रेम भी है जिससे इसको सपोर्ट किया गया है, और इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ये आप देखें हेड प्लेट है। अब इस हेड प्लेट के ऊपर सब कुछ है, हर तरह का पोर्ट, हर तरह का इनलेट वेल्व, जो आपकी टेम्परेचर कंट्रोल पोर्ट्स हैं, पीएच कंट्रोल पोर्ट है, वो सब कुछ इस हेड प्लेट के ऊपर है। ठीक है, ये देखें ये एक और वेसल है, ये स्टेनलेस स्टील का वेसल है और थोड़ा बड़ा वेसल है। इसके साथ भी पोर्ट्स जो है वो आप देखें, ऊपर हेड प्लेट एक है उसके ऊपर पोर्ट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये वो बायोरिएक्टर की टाइप है जिनके ऊपर है प्रॉपर्ली एक हेड प्लेट होती है और उसके साथ। लेकिन अभी हमने पिछली एक पिक्चर देखी थी इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर देखे थे, वहां पर दो ऐसे बायोरिएक्टर भी थे जिनके ऊपर हेड प्लेट नहीं थी बल्कि डायरेक्टली जो वेसल थी उसके साथ कनेक्शंस लगे हुए थे। ठीक है, तो बायोरिएक्टर के अंदर एक नॉर्मली हेड प्लेट हुआ करती है जिसके ऊपर तमाम के तमाम जो पोर्ट्स हैं, जो डिफरेंट एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, एडिशनल पार्ट्स हैं बायोरिएक्टर के, वो अटैचमेंट के लिए पोजीशन होती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं एजिटेटर्स की। एजिटेटर्स क्या होते हैं जी? दे आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द कंटेंट इन द वेसल टू इंश्योर होमोजेनस एनवायरनमेंट। अगर आप एजिटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? एजिटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, कि जो आपका मीडिया है वो किसी साइड पे कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ होगा, किसी साइड पे डाइल्यूटेड होगा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने या जो भी आपने लिविंग सेल आप यूज कर रहे हैं, कल्चर यूज कर रहे हैं, वो लिविंग कल्चर जो है वो एक तरफ रहेगा, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पूरे मीडिया के अंदर। तो इस तरह क्या होगा कि मीडिया का कुछ पोर्शन जो है वो अनयूज पड़ा रहेगा और कुछ ही पोर्शन जो है उसमें ही माइक्रोब अपने आप को यूटिलाइज करके एग्जॉस्ट कर देंगे उसको और अल्टीमेटली डेथ स्टेज पे चले जाएंगे। तो एजिटेशन जो है वो एक होमोजेनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, एक वेसल के अंदर कंटेंट को मिक्स कर रही है ताकि टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ इक्वली हर सेल को मिलता रहे, हर न्यूट्रिएंट को मिलता रहे। ठीक है जी, अब ये जो एजिटेटर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है शाफ्ट और एक होता है एम्पेलर। शाफ्ट तो आप कह लें वो सिंपल सा स्टैंड होता है जिसके साथ ये आगे एम्पेलर्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये आप देखें ये 3 वे एम्पेलर है, इसके अंदर 3 इसके आप कह लें पार्ट्स हैं। ये
6 वे इम्पेलर है, ये भी 3 वे लेकिन जरा थोड़ा ब्रॉड इम्पेलर है इसका, ठीक है। तो ये इम्पेलर्स जो है डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, कि आपकी मिक्सिंग की नीड क्या है, ठीक है। ये आपकी पिक्चर है, ये देख लें जी, ये शाफ्ट है जो सेंट्रल आपका स्ट्रैंड है ना, सेंटर जो आपका रॉड है उसे शाफ्ट बोलते हैं। उस शाफ्ट के साथ जो है वो आपके इम्पेलर्स हैं, वो जो आपने 3 वे या 12 वे या ब्रॉड शेप्ड देखे हैं, ये देखें, ये ब्रॉड शेप इम्पेलर लगा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर 2 सेट लगे हुए हैं ब्रॉड शेड, सॉरी, नैरो शेप्ड इम्पेलर्स के, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि इन्होंने मूवमेंट करानी है, मिक्सिंग करानी है, एक अच्छी सी नाइस मिक्सिंग होनी चाहिए। ये हैं एजिटेटर्स। अगली चीज है जी स्पार्जर। स्पार्जर क्या होता है? स्पार्जर एक ऐसा एपरेटस है जो कि वेसल के अंदर गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाता है। गैस जो है वो ऐसे नहीं है कि एक सिंगल आपने पोर्ट लगा दी उसके साथ गैस खुद ब खुद आई जा रही है अंदर, नहीं, ये एक प्रॉपरली स्टील का वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर मजीद होल्स हुए होते हैं जिससे tiny holes के थ्रू गैस जो है बाहर आती है। So sparges are located at the bottom of the vessel and consist of tube with the tiny holes for the gas to escape through into the culture. The gas coming out of the sparger help to aerate and mix the content in the vessel as well as supply oxygen to the cell. ना सिर्फ जैसे एरिएट हो रहे हैं, एयर आ रही है, गैस साथ आ रही है, लेकिन और साथ साथ के मिक्सिंग में भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास ये है रिंग स्पार्जर, ये देखें ये पूरा का पूरा ये स्पार्जर है, ठीक है। और इस रिंग स्पार्जर्स के ऊपर ये देखें ओपनिंग्स हैं जो टाइनी होल्स जिन्हें हमने कहा था। उसके अलावा ये एक और टाइप ऑफ स्पार्जर है माइक्रो स्पार्जर्स, इसके अंदर से भी एयर निकलेगी, ये और आपका ऑक्सीजन जो है वो का सोर्स है ये वेसल के अंदर। नेक्स्ट है बेफल्स। बेफल्स क्या होते हैं? बेफल्स आर द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन द साइड ऑफ द वेसल दैट जनरेट टर्बुलेंस इन द फ्लो ऑफ द कल्चर, ठीक है। जिस तरह आपने अक्सर वॉशिंग मशीन में देखा होगा ना कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो सेंट्रल आपका इम्पेलर नीचे बीच में लगा हुआ है जो कि पानी को घुमा रहा है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि मशीन की जो साइड्स होती हैं उनके ऊपर भी आउट ग्रोथ्स बनाई होती हैं। जो आउट ग्रोथ है ये बेफल्स होती हैं। इससे क्या होता है कि पानी के अंदर टर्बुलेंस रहती है, पानी जो है वो जो फ्लूइड है वो और ज्यादा शेकिंग को जो है आप कह सकते हैं इसको इम्प्रूव किया गया, शेकिंग मिक्सिंग को, ठीक है, मिक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेफल्स लगाए जाते हैं। और ये बेफल्स जो है ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं और ये यूजुअली जो है वेसल के अंदर वेल्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह मशीन के अंदर तो उन्होंने खुद ही प्लास्टिक की आउट ग्रोथ बना रखी होती है ना, इसके अंदर ये चूंकि स्टील का होता है तो इसे वेल्ड किया हुआ होता है, ठीक हो गया। और अगर आपका ग्लास वेसल होगा तो ये स्टील है ये उस स्टील फ्रेम का हिस्सा होगी जो बाहर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वो स्टील फ्रेम जो ग्लास वेसल के बाहर होता है वो ही उसी के स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि वो बेफल्स अंदर भी उसी के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। ये देखें जी बेफल्स का क्या काम है कि ये तो जो एजिटेटर है उसने तो सेंटर में रोटेशन करनी है, लेकिन जो वेसल की दीवार के वॉल के साथ मीडिया या लिक्विड मौजूद है उसके अंदर मूवमेंट का किसकी वजह से आएगी? बेफल्स की वजह से आएगी, ठीक है। बेफल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो इन द वेसल टू हेल्प मिक्स द कंटेंट्स, और वो मिक्सिंग में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है जी प्रोब्स। प्रोब्स हमने पहले भी कहा था कि ये पीएच, टेम्परेचर और ऑक्सीजन के लिए होते हैं। तो बायोरिएक्टर्स के अंदर प्रोब्स जो है वो मॉनिटर करते हैं कि वेसल के अंदर कल्चर की क्या सिचुएशन है। ये प्रोब्स डिफरेंट लोकेशंस पे लगे होते हैं, वेसल के हेड प्लेट के ऊपर भी होते हैं, उसके अलावा टॉप प्रोब बेल्ट भी होती है, बॉटम प्रोब बेल्ट भी होती है, 2 बेल्ट हेड प्लेट के अलावा भी बेल्ट होती हैं, ठीक है, प्रोब बेल्ट होती हैं। और यूजफुल प्रोब्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन कौन सी है, टेम्परेचर, पीएच, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉनिटर करना जरूरी है, आपको पता है जहाँ लिविंग सेल होते हैं वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें जी ये है प्रोब्स। अब आप ये देखें कि ये है जी वो आपका ग्लास वेसल, ठीक है, जिसके आपको यहाँ ये देखिए अंदर नजर आ रहा है ना ये स्टील रॉड, ठीक है। ये स्टील रॉड जो ये अब बाहर बेसिकली ये फ्रेम का बाहर वाला हिस्सा ये है, ये जो स्टील रॉड अंदर है ये इसका हाँ बेफल है ये इसका, ठीक है। और इसके सेंटर में शाफ्ट के साथ इम्पेलर लगे हुए। अब ये देखें कि इस जो आपका ग्लास वेसल है इसके बाहर कितना कुछ है। ये इसकी हेड प्लेट के साथ ये इतनी चीजें अटैच हुई हुई हैं, ये ट्यूबिंग्स हैं, ये सारा कुछ है। ये देखें ये जो आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के स्टॉपर्स, ये आपके आउटलेट्स हैं, ठीक है, जिनके इनपुट और आउटपुट जो वेल्व्स होते हैं और वो हैं ये, ठीक है।
ये प्रोब्स यहाँ पर अटैच हुए हुए होते हैं। ये देखें, ये प्रोब इंडिविजुअल भी दिखाए हुए हैं आपको, ये इस तरह के स्टील के प्रोब होते हैं। ठीक है, ये सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव। जैसे आपने पीएच मीटर देखा ना, पीएच मीटर के आगे वो एक रॉड सी होती है, बस सिंपल सी, तो वो सिंपल रॉड रॉड जो है उसके अंदर इसका सेंसिटिव प्रोब लगा होता है। तो इसी तरीके से इनके अंदर जो है वो सेंसिटिव इनके प्रोब्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करें। ये देखें, ये जो आपको एक बड़ा सारा मैंने दिखाया था वेसल, उसके ये नीचे लगे हुए हैं, बिल्कुल जैसे पानी की टंकी के साथ नलके नलके लगे हुए होते हैं ना, इसके अंदर ये प्रोब बेल्ट के अंदर ये प्रोब्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर, प्रेशर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर रहे हैं। अब ये देखें कि इसके साथ इतना ज्यादा एक्सिलरी ऑपरेटर्स है जो कि क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो आगे बैकअप के लिए है, ठीक है, जो आगे रिकॉर्डिंग के लिए है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं फर्मेंटर्स जो होते हैं। उसके बाद जी कूलिंग जैकेट, मैंने पहले ही बताया कि सेल्स जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं या वो मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो है रिएक्टर के अंदर मेंटेन करना जरूरी है। तो इन सेल्स की मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट जनरेट ना हो, इसीलिए एक वेसल वेसल को जो है कूलिंग जैकेट से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कूलिंग जैकेट क्या होती है, बिल्कुल वैसी जैसे लाइफ जैकेट होती है ना, जो आप नॉर्मली स्विमिंग के टाइम में पहनते हैं, उस तरह की एक जैकेट के अंदर कूलेंट होता है, कोल्ड वाटर या ग्लाइकोल, वो डाला होता है जो कि जैकेट के अंदर से में रोटेट कर रहा होता है और वेसल के वॉल के साथ चूंकि वो अटैच होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। ये टेम्परेचर जो है ये कंट्रोल करता है द फ्लो रेट ऑफ द कूलेंट। अब जो कूलेंट है उसका भी फ्लो रेट, मतलब जो कूलेंट कूलिंग जैकेट के अंदर है वो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बंद है, उसके अंदर भी रेगुलेशन हो रही है। वहां भी जो हीटेड कूल है, जो वो कूलेंट जो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा उस वो अब बाहर उसके साथ भी आउटलेट लगा है, वो अपने आउटलेट से अपने पंप की तरफ आ रहा है, और फिर जो उसके अंदर से फ्रेश कूलेंट है जिसका टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली टेम्परेचर लोअर है, कूलिंग साइड पे इसका टेम्परेचर है, वो फ्रेश फ्लो पंप के थ्रू थ्रू जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जैकेट के अंदर। ठीक है, ये देखें जी, ये आगे जी कूलिंग जैकेट, ये अब ये पूरी पूरी जो है ये जैकेट है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कूलिंग जैकेट सराउंड द वेसल। ये जो स्टेनलेस स्टील में तो क्या है कि ये इसके इर्द गिर्द जैकेट ही बना हुआ है, और इसके साथ मतलब आप ये कह सकते हैं कि अंदर वेसल है, वेसल के बाहर एक और स्टेनलेस स्टील के अंदर कूलेंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो कूलेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट भी हो रहा है, उसका पंप भी है और उसका एक रेजर्वायर भी है जिसके अंदर आपका कूलेंट मौजूद है। नेक्स्ट पोर्ट्स की बात करते हैं। बायोरिएक्टर्स के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिसके जरिए आप मटेरियल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। पोर्ट्स आर एडेड आर नीडेड टू ऐड द मीडिया, जिसके लिए मीडिया पोर्ट है। सेल्स के लिए नो, सेल्स से मुराद क्या है, सेल्स से मुराद स्टार्टर कल्चर है या लाइव फ्रेश सेल्स हैं जिसको जिसके लिए इनोकुलेशन पोर्ट चाहिए आपको, मतलब वो जिसने सारा कुछ करना है अंदर जाके, वो है इनोकुलेशन पोर्ट। और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने बात की थी रिप्रेसर्स की, इंड्यूसर्स की, तो फीड पोर्ट्स में जाते हैं वो। ठीक हो गया। मीडिया पोर्ट से आपका जो भी मीडिया की कंपोजिशन है, एक दफा आपने जो भी मीडिया बनाना है वो बनवा के आपने मीडिया पोर्ट के थ्रू डाल दिया। उसके बाद आपने अपने सेल्स डाल दिए जिन्होंने जाके अंदर जो है रिएक्शन करना है और जिन्होंने अंदर जाके डिवाइड ग्रो करना है, डिवीजन करनी है। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो लिमिटिंग, जो अब आपको पहले हमने वो कर ली है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें हमने बात कर ली थी कि वो लिमिटिंग सबस्ट्रेट जो होता है वो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट की का मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस लिमिटिंग सबस्ट्रेट की जिसके ऊपर डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द माइक्रोब। तो वो न्यूट्रिएंट आप एडअप भी कर सकते हैं। फीड पोर्ट या न्यूट्रिएंट पोर्ट का काम ना ज्यादातर आता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि आइडो फेज में बनती हैं। आइडो फेज में आपको पता है ना, ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है माइक्रोब की, फिर माइक्रोब को इस तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी सर्टेन जीन्स जो हैं वो ऑपरेटिव हो जाती हैं और अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट जनरेट करती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एडिशन ऑफ एसिड और बेस, क्योंकि पीएच कंट्रोल करनी है तो पीएच कंट्रोल करने के लिए आपको एसिड और बेस डालने पड़ेंगे। तो उनके लिए भी पोर्ट्स बनी होती हैं कि एक पोर्ट से एसिड डल रहा होगा, एक पोर्ट से बेस डल रहा होगा अगर पीएच डिस्टर्ब हो रही है तो।
इसके अलावा एक सैंपल पोर्ट भी होता है लोकेटेड एट ऑन ईच वेल टू रिमूव कल्चर फॉर ऑफलाइन इन्वेस्टिगेशन। आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि अंदर चल क्या रहा है, वेसल के अंदर हो क्या रहा है, तो आपने सैंपल पोर्ट के थ्रू थोड़ा सा सैंपल लेना है, उसमें आपने ट्यूबिलिटी चेक करके माइक्रोब की कंसंट्रेशन चेक करनी है। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि डिफरेंट मटेरियल्स जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या कंसंट्रेशन है, ताकि आपको पर्टिकुलर टाइम पे पता चल जाए कि जो रिएक्शन के अंदर, जो वेसल के अंदर रिएक्शन चल रहा है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है। ये देखें जी, ये हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स जो कि बनी हुई हैं स्टेनलेस स्टील वेसल के ऊपर। यहाँ पर ये पोर्ट्स बनी है, देख रहे हैं आप, ये इतने ज्यादा पाइप्स लगे हुए हैं, इतने ज्यादा ट्यूबिंग्स लगी हुई हैं, सारी पोर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसर की। अब आपने ये देखा होगा कि हर फर्मेंटर के ऊपर एक बड़ा चौड़ा सारा लंबा सारा ये लगा हुआ था। ये क्या होता है मैडम, ये क्या है, हमें नहीं समझ आ रही। हर हर बिल्कुल जैसे हैंड ब्लेंडर नहीं होता, आप सबने हैंड ब्लेंडर तो देखे होंगे ना, जो हाथ में पकड़ के आप अक्सर चटनी पीसने के लिए हैंड ब्लेंडर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो सेंट्रल शाफ्ट जो उसको आपने होल्ड किया होता है वो बहुत मोटी होती है, वो बेसिकली उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होता है, ठीक है। वो तो खैर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। कंडेंसर जो है वो बताने का मेरा मकसद ये है कि जितनी भी वेसल्स आपने अब तक देखी उन सबके ऊपर एक बहुत सॉलिड सा बड़ा सारा मोटा सा पोर्शन बना हुआ है, वो कंडेंसर होता है, ठीक है। कंडेंसर करता क्या है, इट कैप्चर्स सैचुरेटेड एयर लिविंग द वेसल। वो वेसल से एयर जो बाहर निकल रही है, सैचुरेटेड एयर, उसको कैप्चर करता है। ये कंडेंसर जो है ये कूलर है, इस कूलर के अंदर सैचुरेटेड एयर अलाउइंग इट टू कंडेंस ऑन द सरफेस एंड रिटर्न टू द वेसल एज अ लिक्विड। अब ऑब्वियसली लिविंग सेल ग्रो करा रहे हैं, वहाँ पे मुसलसल मिक्सिंग हो रही है, माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, और साथ में मिक्सिंग भी प्रॉपर्ली हो रही है, एजिटेशन भी चल रही है, फोम भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पर डेफिनेट सी बात है कि मीडिया के कंपोनेंट में कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है, जो एज कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट जल्दी वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो वो वेसल से बाहर निकलने की ऊपर की तरफ उठते हैं, आपको पता है ना, स्टीम बनती है चीज तो वो ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि लाइट इन्वेट होती है। तो कंडेंसर का काम ये है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी ऐसी कंटेंट को जो कि मीडिया का हिस्सा है, जो आपका कल्चर मीडिया उसका हिस्सा है, उसको एवेपोरेट ना होने दे। तो वो क्या करता है, वो सारी जो एयर होती है, जो कि सैचुरेटेड एयर होती है, जो कि मीडिया का पार्ट होती है, जो कि वेसल में से एस्केप करने की कोशिश कर रही होती है, वो सबको कैप्चर करता है, उसको कूल करता है और उसको वापस लिक्विड की फॉर्म में वेसल में भेज देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली स्टीम जो है वो एवेपोरेट होती है तो किसी भी पॉट की ढक्कन पे आ जाती है और फिर वापस वो लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर जा रही होती है, जो भी चीज है उस पॉट के अंदर उसमें जा रही होती है। तो कंडेंसर मिनिमाइज करता है लॉस ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द रिएक्टर ड्यू टू एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए कंडेंसर लगाया हुआ है। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट है जी फिल्टर्स। हमने बात की थी कि बायोरिएक्टर्स में फिल्टर्स लगे हुए हैं, इनपुट फिल्टर, इनलेट फिल्टर, एग्जॉस्ट फिल्टर, ये सारे लगे हुए हैं। तो बायोरिएक्टर्स नीड इनलेट फिल्टर टू इंश्योर द गैसेस एंटरिंग द वेसल्स आर स्टेराइल। जो जितनी भी गैसेस एयर के उसके अंदर आ रही हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर, वो स्टेराइल होनी चाहिए, तो उनके लिए फिल्टर्स लगे होते हैं। उसके अलावा एग्जॉस्ट फिल्टर भी होते हैं जो जो रिएक्टर को स्टेराइल रखते हैं और गैस को एस्केप करते हैं टू रेगुलेट द प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अगर गैसेस एक्यूमुलेट ही होती रहेंगी रिएक्टर के अंदर, तो रिएक्टर के खुदा ना खास्ता बर्स्टिंग के चांस हैं, प्रेशर जब उसका उसकी रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा चला जाएगा। तो एग्जॉस्ट फिल्टर्स का काम क्या है कि वो गैसेस को एस्केप कराएंगे, लेकिन वो गैसेस जो कि सैचुरेटेड एयर की फॉर्म में है वो कंडेंसर की वजह से वापस लिक्विड की फॉर्म में चली जाती हैं, ठीक है। इसमें आप ये सवाल कर सकते हैं कि मैडम वो जो सैचुरेटेड एयर है जिसको कंडेंसर ने कैप्चर करना है, जो मीडिया का पार्ट है, वो भी तो गैस फॉर्म में एवापोरेट एग्जॉस्ट फिल्टर से निकल सकता है। तो एग्जॉस्ट फिल्टर बेसिकली कर क्या रहे हैं, एग्जॉस्ट फिल्टर का काम ही है कि उन्हें फिल्टर करना है। अगर ऐसी कोई ऐसा कोई कंपोनेंट जो है वो एग्जॉस्ट फिल्टर की तरफ जाता भी है एस्केप होने के लिए, या प्रेशर रेगुलेशन की वजह से गैसेस बाहर निकलती हैं, तो एग्जॉस्ट फिल्टर का काम ही है कि उसने फिल्टर करना है। तो कंटेंट उसका सैचुरेशन जो है वो हो जाएगी और जो सिंपल एयर होगी वो जो प्रेशर होगा वो इजीली मूव आउट कर जाएगा। फिल्टर्स रिक्वायर अ फिल्टर होजिंग, स्टेनलेस स्टील कैबिनेट टू होल्ड एंड स्टेराइज द फिल्टर। अब ये जो फिल्टर्स हैं, ये जो फिल्टर, ये वाला फिल्टर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के फिल्टर्स, ये फिल्टर भी ऐसे नहीं लगे होते उसके साथ, ये भी किसी एक हाउसिंग के अंदर लगे हुए हैं, जहां पर फिल्टर हाउसिंग जिसको हम बोल रहे हैं,
ठीक है। उसके अंदर ये फिल्टर्स लगे हुए हैं और उसमें आप ये जैसे देख रहे हैं कि ये एक फिल्टर हाउसिंग है, इसके अंदर 2 आउटलेट्स हैं, ये मतलब 3 आउटलेट है, 1 2 3, ये 3 आउटलेट्स हैं। ठीक है, तो ये इनलेट फिल्टर, एग्जॉस्ट फिल्टर और ये टोटल फिर फिल्टर हाउसिंग, ये पूरा का पूरा जो है सेटअप रिएक्टर के साथ होता है। इसके बाद बात करते हैं बैक प्रेशर वेल्व की। बैक प्रेशर वेल्व क्या करता है? अ बायोरिएक्टर मस्ट रिमेन अंडर कांस्टेंट प्रेशर, सो वी वांट द प्रेशर इन द रिएक्टर टू बी हायर देन द प्रेशर सराउंडिंग इट। तो रिएक्टर के अंदर प्रेशर जो है वो हाई रखा जाता है। कांस्टेंट प्रेशर हेल्प टू इंश्योर स्टेरिलिटी ऑफ द रिएक्टर बाय कीपिंग माइक्रोब्स आउट। आप प्रेशर मेंटेन इसलिए भी रखते हैं कि स्टेराइल रहे चीज। जितना प्रेशर अंदर ज्यादा होता है, जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ होता है, उतना माइक्रोब्स वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वो माइक्रोब्स जो कि क्या है, जो कि कंटेमिनेशन है इस केस में। सो प्रेशर इज एडेड टू द रिएक्टर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एयर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टर हेड स्पेस। दिस प्रेशर इज रेगुलेटेड यूजिंग अ बैक प्रेशर वेल्व। तो बैक प्रेशर वेल्व का काम क्या है कि जो आप प्रेशर दे रहे हैं रिएक्टर के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए बैक प्रेशर वेल्व की जरूरत है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट और वेल्व्स भी हैं, वो कंट्रोल कर क्या कर रहे हैं, गैस को और लिक्विड को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें मैनुअल वेल्व है, न्यूमेटिक वेल्व हैं, स्टीम लॉक वेल्व हैं। मैनुअल वेल्व तो वो है ना जो आप अपने हाथ से खोलते और बंद करते हैं। न्यूमेटिक वेल्व्स कौन से हैं? ऑटोमेटिक वेल्व्स विच ओपन और क्लोज विद द यूज ऑफ हाई प्रेशर एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर, एयर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एयर डेवलप हो रही है वो खुद से जो है ना उसके लिए भी वेल्व्स लगे हुए हैं जो कि उस प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिक वेल्व खुलते या बंद होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये न्यूमेटिक वेल्व्स कहाँ पर होंगे? ये इनलेट फिल्टर और आउटलेट फिल्टर के साथ होंगे। ठीक है, उसके अलावा स्टीम लॉक वेल्व भी, जिसको हम ब्लॉक एंड ब्लीड वेल्व कहते हैं, are two valve assembly which allow a fluid to flow through a portion of the valve and then close and use the other portion of the valve to sterilize the valve assembly after use to reduce contamination. These valves can be manually or manual or pneumatic. Steam lock valve क्या है कि ये एक 2 वेल्व की असेंबली है जिसमें से क्या हो रहा है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक वेल्व के पोर्शन में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जब फ्लूइड वहां आता है तो वो बंद हो जाते हैं, और दूसरा वेल्व जो है वो स्टेरिलाइज करता है वेल्व असेंबली को, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की कंटामिनेशन अंदर ना जा सके जब नेक्स्ट टाइम फ्लूइड पास करे वहां से। ठीक है, उसके अलावा सैंपल वेल्व है, ये मैंने पहले भी बता दिया। इसके आप सैंपल लेते हैं ऑब्टेन सैंपल को चेक करने के लिए। उसके हार्वेस्ट वेल्व है। हार्वेस्ट वेल्व क्या है कि ये ड्रेनिंग के लिए मतलब ड्रेन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। जिस तरह कंटिन्यूस कल्चर में आपने आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ स्पेंट मीडिया निकालना है तो वो हार्वेस्ट वेल्व के जरूर निकालेंगे आप। इसके अलावा पोर्ट्स हैं, कंटेन एन ऑटोमेटिक स्टीम लॉक वेल्व, सो लिक्विड कैन बी एडेड टू द वेसल, द पोर्ट कैन बी स्टेरिलाइज्ड आफ्टर यूज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो ये ऑटोक्लेवेबल पोर्ट्स इनको आप कह सकते हैं। ये देखें जी, ये है जी मैनुअल वेल्व, ठीक है, जिसको आपने हाथ से खोलना बंद करना है। ये है जी न्यूमेटिक वेल्व जो कि खुद ब खुद प्रेशर की वजह से कम खुलेगा और बंद होगा। ये स्टीम लॉक वेल्व है, आप देखें जैसे चूल्हे के ऊपर नॉब नहीं लगी होती वैसी नॉब है। ठीक है, स्टीम लॉक वेल्व्स हैं ये सारे इस तरह के वेल्व्स जो हैं ये बायोरिएक्टर के अंदर लगे होते हैं ना। लास्ट है जी लोड सेल। लोड सेल क्या है? लोड सेल इज अ स्केल दैट मेजर्स द वेट ऑफ द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर टोटल जो चल रहा है उसका वेट कितना है? The bioreactor sits on a series of load cell that compresses when weight is added to the vessel. ठीक है, एक ये लोड सेल जो है आप समझ लें बेस पे होते हैं। जब आप वेट ऐड करते हैं तो ये लोड सेल जो है ये मेजर करते हैं कि टोटल बायोरिएक्टर का वेट कितना है। The weight of the bioreactor can be correlated to the volume of the liquid in the vessel by using the density of the cell culture medium. तो अल्टीमेटली ये जो वेट आप निकाल रहे हैं बायोरिएक्टर का, ये बायोरिएक्टर का वेट नहीं निकाल रहे हैं आप, ये बेसिकली आप वेसल के अंदर जो लिक्विड है ना उसके वॉल्यूम को एस्टिमेट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वेट निकाल के डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे। सॉरी वेट और डेंसिटी आपको पता होगी तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं लोड सेल के जरिए। ठीक है जी, तो ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे बायोरिएक्टर के। देखिए कॉम्पैक्ट कंप्रेशन लोड सेल, ठीक है, ये एक लोड सेल है, ये नीचे दिखा रखे हैं, ये रहे लोड सेल, ये इतने बड़े रिएक्टर के नीचे ये लोड सेल है। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ लोड सेल इस तरह से ये दूसरे से इतने फासले पे होते हैं ताकि प्रॉपर्ली पूरे बड़े सारे वेसल को केटर कर सकें, उसका वेट नोट कर सकें।
इसके अलावा उसके अलावा यूटिलिटीज बायोरिएक्टर्स के, ये तो जो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी बायोरिएक्टर के साथ अटैच थी, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपके उस सेटअप के अंदर होना मौजूद होना जरूरी है। गैसेस लाइक एयर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर, ये आपकी यूटिलिटीज हैं जो आपके पास होनी चाहिए गैसेस में। क्लीन स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए रिएक्टर की, ठीक है। कंडेंस्ड क्लीन स्टीम जो है वो वाटर फॉर इंजेक्शन के बराबर है। वाटर फॉर इंजेक्शन का पता है ना आपको, वो जो इम्प्यूल होता है, ठीक है, इंजेक्शन वाटर जो होता है वो प्योरिफाइड वाटर होता है, ठीक है, वो क्लीन होता है। तो जो क्लीन स्टीम यूटिलिटी है उसका काम क्या है कि उसने वाटर फॉर इंजेक्शन जितनी स्टेरिलिटी देनी है, रिएक्टर को स्टेरिलाइज कराना है, ठीक है। कूलेंट चाहिए आपको, ऑब्वियसली जो कूलिंग जैकेट है जिसके अंदर कूलेंट सर्कुलेट कर रहा है, वो क्या है, वो ऑब्वियसली वो आपके पास एक्स्ट्रा बॉटल या एक्स्ट्रा आप क्या एक अलग से कंटेनर ग्लाइकोल का अटैच आप करेंगे तो वो मूव करेगा ना उस कूलिंग जैकेट के अंदर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एयर, ये न्यूमेटिक वेल्व्स को ऑपरेट करने के लिए, आपको चेक करने के लिए कि जी न्यूमेटिक वेल्व प्रॉपर्ली चल रहे हैं, नहीं चल रहे, खराब तो नहीं हो गए, तो इंस्ट्रूमेंट एयर जो है उसको मॉनिटर करने के लिए न्यूमेटिक वेल्व्स जो हैं उनको उनको ऑपरेट करने के लिए ये सारी यूटिलिटीज जो हैं आपके पास मौजूद होनी चाहिए अपनी फैसिलिटी के अंदर जहां आपने बायोरिएक्टर ऑपरेट हो रहा है। एंड दैट्स इट। इसके इस लेक्चर के अंदर हमने बायोरिएक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या काम हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारे हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।